یہ کن کے متعلق ہے؟ کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یار مشورہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، محمد کو کہیں لے جاؤ، اس کو دم کراؤ، اس کو لگتا ہے کوئی جن چمڑ گیا ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو اس نے سارے الہوں کو ختم کر کے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے الہ ختم، ایک کو الہ، اس کو ذرا چیک کرو، چیک کراؤ اس کو۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اور نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون نعوذ باللہ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون، من جنہ، من ایک نا، ما بصاحبہم جنہ ایک ہے، من جنہ، یہ من جو ہے نا یہ کلی نفی کے لیے ہے، ہر چیز کی نفی کے لیے، کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ نذیر بن کر آیا ہے، نذیر ڈرانے والا ہے۔ لوگوں، او لوگوں کائنات والو، بچ جاؤ، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، ورنہ اس آگ کا ایندھن بنو گے جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ ڈرانے کے لیے آئے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان و زمین کی بادشاہت کے اندر؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل قریب آ چکی ہو۔ اجل سے مراد موت، یہ اجل سے مراد عذاب کی مدت۔ اور بھئی یہ آسمان، یہ زمین، آسمان و زمین کے اندر جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کون بنانے والا ہے اتنا بڑا آسمان؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بار بار دیکھنا کس طرح تہبت ہے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو بنایا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رب کی تخلیق میں تجھے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کہیں سے کجی ٹیڑھ پن، کوئی ستون نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، دنیا کا کون سا کاریگر، کون سا انجینئر ہے جو ستون کے بغیر کوئی عمارت بنا سکے، کھڑے کر سکے، چھت بنا سکے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے زمین کو تیرے لیے فرش بنایا اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے تیرے لیے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات، اس ایک پانی سے ثمرات نکالے، ثمرہ نہیں کہا اللہ نے، کیا فرمایا؟ ثمرات جمع ہے، مختلف طرح کے ثمرات، پانی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، اسی ایک جگہ سے ایک درخت کے اوپر اللہ نے کئی ذاکوں کے پھل نکال دیے۔ آپ دیکھ چلے جائیں کسی بھی پھل کے درخت کو، اس کا پھل توڑیں، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ اچھا، یہ اخروٹ، یہ بادام، یہ پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں،
सख्त जगह है, पत्थर है, और दरख्त इसी तरह का आपने देखे हैं, अखरोटों के दरख्त, बादामों के दरख्त देखे हैं, इसी तरह के ओ ऊंचे दरख्त है जनाब। फिर अखरोट के ऊपर कितना सख्त छिलका है, इसके ऊपर एक और छिलका होता है, जब ये पकता है तो वो छिलका खुद ब खुद उतर जाता है, अंदर वाला छिलका ये सख्त हो जाता है। अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह ने अंदर उसके मगज की हिफाजत की है। हाँ? कभी कभी गौर फिक्र, यही तो असल मसला है ना, हमने कभी कायनात के निजाम में गौर फिक्र किया ही नहीं है। कुरान इसी की दावत देता है, इसीलिए तो लोग आपको कहते हैं कुरान नहीं पढ़ना। कुरान पढ़ोगे तो तुम गौर शुरू कर दोगे, और गौर करोगे तो समझ जाओगे कि एक कुछ नहीं कर सकता, सारा काम है जड़ा पिया कबर वाला, एक कुछ नहीं कर सकता, सारा उस जिंदे का काम है। उस वतवक्कल अलल हई अल्लज़ी ला यमूत, और भरोसा कर उस जिंदे पर जिस पर कभी मौत, और जिस पर मौत आ जाए वो इलाह और माबूद बनने के काबिल नहीं है। हाँ? मौत कमजोरी का नाम है, नींद कमजोरी का नाम है, ऊंग जफर साहब नींद आती पई है ना, कमजोरी की अलामत है ना, नींद कमजोरी है। आदमी बैठा है ठीक ठाक, अचानक ऊंग आती है तो गिर जाता है। क्यों गिरता है? और जो अपने आप को जिंदा है, और जिंदा है, ऊंग आई अपने आप को नहीं संभाल सका, वो कायनात को कैसे संभाल सकता है? हाँ? वो तुझे और मुझे कैसे संभाल सकता है? जिसे अपना नहीं पता। वमा यशऊरून अय्याना युबासून, और उनको इतना भी पता नहीं कि कब्रों से कब उठाए जाएंगे। हाँ? कुरान है, सूरत नहल है, 14वां सुपारा है, वमा यशऊरून अय्याना युबासून, और उनको इतना भी नहीं पता कि वो कब्रों से कब उठाए जाएंगे। हाँ? तुम उनको अपना माबूद बनाए बैठते हो, उनके सामने अपनी हाजतें पेश करते हो, उनके सामने अपनी जरूरियात पेश करते हो। उस जिंदा को छोड़कर, उस जात को छोड़कर जिसने बगैर मांगे तुम्हें सब कुछ दिया, जिसने बिन मांगे तुम्हें सब कुछ दिया, और अब जब मांगने के काबिल हुए हैं शेर खान साहब, अब जब मांगने के काबिल हुए तो क्या कहते हैं? ओ साड़ी सुनता नहीं थी, इन्हां दी रब मोड़ता नहीं है, वो हमारी सुनता नहीं है, वो नहीं सुनता। तो ये कहना कि वो हमारी नहीं सुनता, अल्लाह का कुरान कहता है वो समीअ, वो वही सुनने वाला, उसके सिवा कोई सुनने वाला है ही नहीं। वो समी, उसका मतलब क्या है? वही सुनने वाला है, उसके सिवा। और समी क्या है? लिकुल्ल दुआ, हर दुआ को सुनने वाला है, अपने की भी सुनता है, परायों की भी सुनता है, मानने वालों के भी सुनता है, न मानने वालों के भी सुनता है, इंसानों के भी सुनता है, जानवरों के भी सुनता है, कायनात के जर्रे जर्रे की सुनता है। अगले दिन एक छोटा सा तुर्की के अंदर एक परिंदा दरख्त के ऊपर बैठे, साफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, परिंदा। और ये हजरत इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, ये अल्लाह को छोड़कर किसको पुकार रहा है? मखलूकात की तरफ जा रहा है। हाँ? हर चीज अपने असल के ऊपर कायम है, और अगर फिरा हुआ है तो कौन? इंसान और जिन। ये सारी की सारी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई थी? इंसानों के लिए। और पूरी कायनात इंसान को क्या दे रही है? नफा फायदा दे रही है, अल्लाह का हुक्म मान रही है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्द फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह क्या फरमाते हैं? इन्ना अरज़नल अमानत, हमने अमानत पेश की आसमानों पर और जमीन पर,
فअबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया उसमें खयानत करने से। यानी हर एक चीज को अल्लाह ने अमानत पेश की है, उसके मुनासिब जो हुक्म था उसको पेश कर दिया। सब ने अल्लाह के हुक्म में खयानत करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वहमलहल इंसान, इंसान को भी अल्लाह ने अमानत पेश की थी। कौन सी अमानत? अलस्तु बिरब्बिकुम, पढ़ चुके हैं ना, ये चंद दिन पहले पढ़ा। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, क्या कहा, क्यों नहीं अल्लाह तो। लेकिन दुनिया में जब आए, दुनिया की रंगीनियों में आंख खोली, ओ अच्छा अच्छा, ऐ भी है, ऐ भी है, ऐ भी है, अच्छा ये माल है, तो भूल गया रब को, भूल गया। क्या कहता है, ये तो मेरे अपने हाथों की कमाई है, ये अपने हुनर से मैंने कमाया है, अपनी अकल और फहम और दानिश से मैंने कमाया है, अपनी ज़कावत और जहानत से मैंने कमाया है, अपनी कारीगरी से मैंने कमाया है, अपने बलबूते पर सारा कुछ मैंने हासिल किया है। और कुरान क्या कहते हैं, हा? तेरा अपना वजूद भी तेरा नहीं था, तेरा वजूद तुझे कौन देने वाला है? कभी गौर फिक्र किए? अल्लाह, हो सकता है कि तेरा वक्त जो है ना, उनकी अजल क्या आ चुकी हो, करीब आ चुकी हो। फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, और कुरान के बाद आप किस बात पर ईमान लाने वाले हो? फबी अय्यि हदीसिन बअदहु, तो इसके बाद और किस बात पर वो ईमान लाएंगे? अल्लाह इस मुख्तलिफ अंदाज से इंसान को समझाता है, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं युज़लिल्लाह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फला हादिया लह, उसे कोई हिदायत देने वाला। आदम जी मौलवी ज़ियाउर रहमान 3 साल हो गए ना, तो बहुत सारे लोग जिन्हें तो पीछे नमाज पढ़नी छोड़ गए ना, हाँ इतने पढ़ दे को नहीं जाने, हाँ अदनी दी गल ते असर ही को नहीं। कुरान की आदत है, मैं युज़लिल्लाह, जिन्हों अल्लाह गुमराह कर दे उनको हिदायत। मौलवी ज़ियाउर रहमान के, हाँ? मेरा काम हिदायत देना है, मेरा काम तो की है, सीधा राह दिखाना है, दसना है। ये जो कुरान कहते हैं, वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक, हक बात बतलाना है, हक रास्ता बतलाना है, हिदायत उसके कब्जे में है। वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और वो उनको छोड़े रखता है अपनी सरकशी में, हैरान सरगर्दान फिरे रहते हैं। अल्लाह उनको छोड़ देता है गुमराही के अंदर, वरना अल्लाह चाहे तो फौरन पकड़ सकता है, उसके आगे किसी की क्या मजाल है, उसके आगे कौन दुम दबा सकता है? तो यार अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाइयों, अपना अपना हिस्सा डालें अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह के दीन के लिए। मेरा और हर बंदा, सिर्फ मौलवी ज़ियाउर रहमान नहीं, हर में से हर बंदा जो कलमा गो है, उसका क्या है, उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए क्या करे, कोशिश करे, मेहनत करे अपनी जगह पर। समझ आ रही? ताकि कल कला अल्लाह की अदालत में क्या हो सके, सुरखरू हो सके। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुरान और सुन्नत को सीख कर, समझ कर, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।